Good morning students, welcome back for the class 12 subject business study chapter number 5 organizing. As we have completed part 1, in part 1 we have seen what is organizing and then we have seen the steps of organizing or procedure of organizing. Today's topic is importance of organizing. So let's begin with the topic importance of organizing one by one. So here we go. Organizing function helps in survival and growth of an enterprise, and its functions must be properly performed to complete tasks and meet the goal successfully. In this paragraph, it is mentioned that अगर organization को organizing अगर आप करते हो तो organizing के अंदर आप अपनी organization को survival and growth की तरफ ले जा सकते हो by performing a complete task and to get the successful goal achievement. So here I have underlined certain points which are very important for organizing function. In organizing function, अगर आप organizing function करते हो तो organizing function के अंदर enterprise survival and growth कर सकता है because of chronological order method. उसके बाद में आप परफॉर्म कर सकते हो, आपका जो जॉब है वो आप प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो और उससे आपका जॉब का जो कंप्लीशन ऑफ टास्क जो है वो ऑन टाइम हो जाता है। जब ऑन टाइम हो जाता है तो आप अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। तो अचीवमेंट करने के लिए ही ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के लिए एकदम सिंपल सा वर्ड हम लेके चल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपने वर्क को डिवाइड करते हो। So today we will see the importance. So the needs and importance of organization can be understood on the basis of the following points. These are the flow chart. We will start with the benefits of specialization, then we will go for a clarity of working relationship, then optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personnel, expansion and growth. These 7 points will be taught today in this video in detail. Let's begin with the first point, benefits of specialization. Benefits of specialization. In this, the process of organizing leads to a systematic allocation of job amongst the workforce. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो ऑर्गेनाइजिंग करने में आप सिस्टमेटिकली सबको जॉब असाइन कर देते हो और ये असाइन करने का मकसद यहाँ पर ये होता है कि वो कैंडिडेट प्रॉपरली वर्क करे और प्रॉपरली इस तरह से काम करे कि उसका टारगेट भी अचीव हो जाए और वो नए नए एक्सपीरियंस भी गेन करते रहे। सो second point has mentioned over here, such division of work reduce the workload and increase the productivity. आप एक एक्सपर्ट को अगर आप जॉब देते हो, वो एक्सपर्ट एम्प्लॉय अपना काम अगर प्रॉपरली करता है तो वर्कलोड जो है वो भी कम हो जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगते हैं। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग हमेशा आपको एक सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब की तरफ ले जाता है जिससे आपका वेस्टेज कम हो जाएगा और आपका वर्कलोड जो है वो भी डिवाइड हो जाता है और साथ साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज repetitive performance of the particular work also leads to specialization. इसीलिए कहते हैं कि अगर एक कैंडिडेट सेम चीज बार बार हर दिन रिपीट करता है तो रिपीट करने की वजह से उसको काम में महारत हासिल हो जाती है। आई वुड से दैट ही गेट्स मोर मोटिवेटेड विद द सेम वर्क एंड ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इटसेल्फ। उस फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं, नए नए टास्क अचीव करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो ऑर्गेनाइज में जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन को एक स्पेसिफिक जॉब दे देते हो तो वो पर्सन हर रोज रिपीटेड परफॉर्मेंस करते रहता है तो वो एक स्पेशलाइज बन जाता है या स्पेशलिस्ट कैंडिडेट बन जाता है।
अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर अगर बन जाता हूं, तो every day I work on computer with the typing, with the designing, and various kind of things. If I am doing in the computer field, then I'll be considered as a specialist, or I will be working as a specialist for the particular organization. मेरे इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। गलती के चांसेस कम इसलिए होंगे क्योंकि मैं वो चीज़ों के लिए अब वो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ और हर रोज कर रहा हूँ, इसलिए वो रिपीटेड नहीं होगा एज अ रॉन्ग। मैं गलती नहीं कर सकता। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर ये पॉइंट क्लियर है कि अगर आप ऑर्गेनाइज सिस्टम मेथड से अगर आप किसी को जॉब एलोकेट करते हो, तो वो कैंडिडेट नॉर्मली वर्कलोड डिवाइड कर देता है, साथ साथ में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर लेता है, और रिपीटेटिव परफॉर्मेंस करने की वजह से वो खुद भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। Point number two is related to clarity in working relationship. अब इस पॉइंट को हम देखते हैं। Organizing establish the work relationship which clarify the line of communication and specifies who is to report to whom. Organizing अगर आप करते हो तो ऑर्गेनाइजिंग से एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि वो किसके पास से गाइडेंस ले, किसके पास से ऑर्डर ले, और उनको जब जॉब में कोई प्रॉब्लम हो या जॉब कंप्लीटेड हो गया तो किसको जाके बताए। तो ये ऑर्गेनाइजिंग से ही पता चलता है। एक स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन कौन से डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे होम टू रिपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। किसको रिपोर्ट करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो एवरी इंडिविजुअल नो हिज सुपीरियर, उनके ऊपर के जो कैंडिडेट, उनके ऊपर जो एम्प्लॉय है या उनके ऊपर जो बॉस है, उनको पता चल जाता है एज एन एम्प्लॉय आई हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, टेक ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड गिव ऑल द थिंग्स विच आई हैव अचीव्ड। मैं जो भी काम करता हूँ, कैसा भी काम करता हूँ, मैं अपने सुपीरियर को एडवांस में बता देता हूँ, या फिर बाद में एक राइटिंग में से बता देते हैं कि हमने ये टास्क कंप्लीट किया, हम लोग आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हम एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय, हमें पता होता है कि हमारे सुपीरियर को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। जैसे अगर हम लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में जब हम लोग एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो आई बिलोंग्स टू कॉमर्स डिपार्टमेंट। So what happens in commerce department? I am having an HOD, head of department, head of commerce department. If I am facing any problem or if I have achieved something, I have to inform my superior, known as head of the department. That person always will appreciate me or guide me or give me instructions what to do next. ये एक एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं जिसमें क्लियरली पता चलता है कि अगर मैंने गलती भी की होगी तो वो गलती हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता चल जाती है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस गलती के लिए हमें गाइडलाइंस देता है कि ये वापस रिपीट ना हो। तो ये एक क्लियर टर्म है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है सुपीरियर एंड सुपरवाइजर्स के बीच में, और साथ में एम्प्लॉयज़ भी वर्क अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न अगर स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है, और लोग काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्ट मेथड जो है वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाता है। Clarity is in superior and subordinate relationship helps in fixing responsibilities and specify to the extent of authority to be exercised by an individual। वही चीज़ मैंने कही अभी इससे पहले कि अगर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है तो वो हेल्प करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको कितनी देनी है और उनका जॉब अथॉरिटी क्या है, वो कैसे काम कर सकते हैं, और इंडिविजुअल का एक्सरसाइज किस तरह से उनसे करवाना है। तो ये है कुछ क्लैरिटी इन वर्क इन रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट जब हम लोग आते हैं तो थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू हैव हर्ड दिस फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 4। Everywhere you can find this point, optimum utilization of resources। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर यह है कि वेस्टेज कम करना है, इफेक्टिव रिजल्ट देना है और एफिशिएंट रिजल्ट लेके आना है। सो
ऑर्गेनाइजिंग ensures that optimum use of human, finance and material resource. अगर ऑर्गेनाइजिंग आप करते हो तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो ह्यूमन एफर्ट्स का, फाइनेंस का और रिसोर्सेस का. सो in organizing, work is assigned as per ability and proper assessment of job avoids overlapping of work and also make possible the best use of resources. In organizing, अगर ऑर्गेनाइजिंग आप करते हो तो आपने बेस्ट पॉसिबल जॉब असाइन किया होगा बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट के लिए. तो इससे क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट अगर काम कंटिन्यूस कर रहा है तो वो ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो एक काम अगर वो कर रहा है तो वो काम कंटिन्यूसली फॉरवर्ड ले जाएगा, बैकवर्ड तो नहीं आएगा. तो इससे क्या होता है कि बैकवर्ड नहीं आने की वजह से ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, और ओवरलैपिंग के चांसेस कम होने की वजह से यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है आपको रिसोर्सेस में. एग्जाम्पल सिंपल सा है कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं, एक ही जैसा जॉब दो लोग कर रहे थे, एक ने सेम काम किया है, वैसा ही सेम काम दूसरा भी कर रहा है, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है. बट वो दोनों मिल के अंडरस्टैंडिंग करके अगर साथ में काम कर रहे हैं तो एक बंदा जो काम कर रहा है वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा उसके आगे की सोचेगा. तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इसके वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने का एक रीजन यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनाइज करने की वजह से आप डुप्लीकेटिंग वर्क नहीं कर सकते या रिपीटेड वर्क क्रिएट नहीं कर सकते. कंफ्यूजन कम होगी, और कंफ्यूजन कम होगी तो वेस्टेज एंड एफर्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो मिनिमम यूटिलाइजेशन करने की वजह से या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो. तो ऑर्गेनाइजिंग में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो. पॉइंट नंबर 4, एडेप्टेशन टू चेंज. अब एडेप्टेशन टू चेंज की जब बात हम लोग करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. यू नो दैट कि मार्केट हमेशा चेंज होते रहती है. 11th में भी आपने पढ़ा होगा, अब 12th में भी पढ़ रहे होगे. डायनामिक एनवायरनमेंट, मार्केट कभी भी सर्टन नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टन इन द मार्केट. जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होते हैं. लेकिन लॉसेज एंड प्रॉफिट वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल टर्म्स पे भी डिपेंड करता है. सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलवेज डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करती है. सच एन event changing environment pose both challenges and opportunity to the business. अगर डायनामिक एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तो फिर उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे. सो इससे फ़ायदा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द एंटरप्राइज टू adjust itself as per changing circumstances by suitability, modifying the organization structure and revise the interrelationship amongst managerial level for the smooth transaction. अगर जब ऑर्गेनाइजिंग की बात जब हम लोग करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजिंग आप करते हो तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को एक सिंपल सा लॉजिक मिल जाता है और वो अपने प्लानिंग्स के अंदर या अपने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर सकता है, और सूटेबल चेंजेस के बेस पे वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, रिवाइज कर सकता है इंटर रिलेशनशिप अमंग्स मैनेजरियल लेवल फॉर स्मूथ ट्रांजिशन. यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर प्रोडक्ट की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलगेट पाउडर. In today's generation, no one will use that powder. Everyone is using toothpaste. तो ये चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग जब आप करते हो तो आप सारी चीज़ों का रिव्यू करते हो. रिव्यू करने पे आप देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है.
अगर नहीं बिक रहा है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसके अंदर चेंजेस लेकर आओ, अगर चेंजेस नहीं ला सकते तो उसको क्लोज डाउन कर लो और उसके लिए कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ले लो। तो ये सारे ऑप्शंस के बेस पे भी आपको ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में कि आपके स्ट्रक्चर में कहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है और कहाँ पे नहीं। Organizing provides stability to the enterprise so that it can continue to survive and growth in spite of changes. अगर ऑर्गेनाइजिंग आप करते हो, आप स्ट्रक्चर बनाते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वर्क करते हो, तो आपकी एंटरप्राइज कंटिन्यूसली वर्क ऑन कर सकती है, सरवाइव कर सकती है और ग्रोथ कर सकती है इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग। चेंज भी करना ज़रूरी है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइप का काम करना चाहिए। आप अकाउंट्स में भी पढ़ सकते हो, जैसे आप अकाउंट्स की बात करते हो तो पहले अकाउंट्स में देसी नामा सिस्टम चलता था, आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जीएसटी हम लोगों ने सीख लिया है। तो दौर चेंज होते जा रहा है, सॉफ्टवेयर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, अपग्रेडेशन आते जा रहा है। तो मार्केट में जैसी डिमांड होती है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकता है या किस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेट्स टेक organizing provides a clear description of job and clarifies authorities and responsibility relationship. ऑर्गेनाइजिंग जब आप करते हो तो ऑर्गेनाइजिंग में आपको पता चल जाता है आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके पास क्या पावर्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है आप अगर ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो। It helps to avoid confusion and duplication of efforts. यहाँ पर एकदम क्लियर है, अगर ऑर्गेनाइजिंग आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अवॉइड करते हैं अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग की है तो। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप enables proper execution of work and brings effectiveness in administration. अगर वर्क रिलेशनशिप क्लियर है तो यहाँ पे काम करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है और बेस्ट रिजल्ट्स आप लेकर आ सकते हो। पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजिंग अगर होते हैं तो नॉर्मली क्रिएटिव मैनेजर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है या कॉमन गोल जो होता है वो अचीव करने में हेल्प करना। तो उसी बेस पे हम लोग पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेडिकेशन allows the manager to reduce their workload by assigning routine job to their subordinates. मैनेजर के लिए अगर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार है तो मैनेजर के लिए ये बहुत आसान हो जाता है, वो जॉब अलॉट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को और उनके बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस बेस पे उनको जॉब दी जाती है या उनको टारगेट दिया जाता है। इट गिव देम टाइम टू कंसर्न ऑन strategic issues and explore new area of growth. और इसी बेस पे वो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं या एक्सप्लोर ऑफ न्यू एरिया ऑफ ग्रोथ की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। It also gives them opportunity to involve, which helps strengthen the company's competitive position. यहाँ पर सीधा सा है कि अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इनोवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। जितना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उतना ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन में होल्ड कर सकते हो या मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन दे सकते हो। Dedication also develops the subordinate by giving them the ability to deal effectively with the challenge and be realistic with their full potential. अगर आपके सबऑर्डिनेट्स के पास एबिलिटी है और वो डील कर सकते हैं इफेक्टिवली और चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है
तो वो मार्केट में कोई भी टर्म से लड़ सकते हैं, कोई भी ग्रुप से लड़ सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। अगर वो ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल ऑल्सो गेट्स देयर प्रमोशन, दे कैन क्लियर देयर टारगेट्स एज यूजुअल। यहाँ पे जब डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट गेटिंग स्टेटस, इट इज अबाउट knowledge, it is about personal objectives, about getting money, everything is involved in personal। खुद की नॉलेज और स्किल्स के बेस पे जो ग्रोथ करते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है अगर आपने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्रिएट किया हो तो। स्पेशली जब भी आप कोई जॉब करते हो तो पहले एग्जीक्यूटिव होते हो, फिर एग्जीक्यूटिव से आप अच्छे खासे अगर परफॉर्मेंस अच्छी देते हो तो आप टीम लीडर की तरफ बढ़ते हो, टीम लीडर अगर अच्छे होंगे तो फिर जूनियर मैनेजर, जूनियर से फिर सीनियर, सीनियर से फिर आप ऊपर की तरफ जाते हो। तो जैसे जैसे आपका स्टेटस ग्रोथ होता है तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपके पास होता है और आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इतना याद रखना है आपको कि जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अप होता है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आती है। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो आपको फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करके देता है और आप हमेशा अपनी ग्रोथ या अपने स्ट्रक्चर के बेस पे हमेशा तैयार रहते हो न्यू चैलेंजेस के लिए। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को आप डाइवर्स कर सकते हो या उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस आए तो चेंजेस के अंदर भी आप नए नए एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकते हो। Organizing allows the business enterprise to add more job positions, departments, and even diversify their product line. It helps the expansion and growth of business. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपने आज इस बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस आज स्टार्ट करने पे आप अकेले ही ओनर हो। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा, आपको लोगों को लाना पड़ा या एम्प्लॉयज हायर करने पड़े। जैसे जैसे आप एम्प्लॉयज हायर करना शुरू करोगे तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे आप वर्क डाइवर्ट करते हो या डिवाइड करते हो। जब डिवाइड करते हो तो अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट होंगे, डिपार्टमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करोगे। इसकी वजह से नई जोग्राफिकल टेरिटरीज में आप जा सकते हो, करंट एरिया से आप ऑपरेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर नए नए कस्टमर बेस बना सकते हो, सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग की है तो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टर्म with authorities and responsibilities with different different employees, it can make the organization more useful and profitable। उनके पास नए नए मार्केट आते जाएंगे, नए नए कस्टमर आते जाएंगे, अगर कस्टमर आ रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स भी गेन करेंगे। द टॉपिक ऑफ 7 पॉइंट इज ओवर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। We will see organizational structure in next video. Thank you.